Hello, people. So I am back on Sunday with another podcast, and today in the house we have Mr. Arpit. He's a business owner, and he's operating his business both physical as well as online now. So let's hear more about him from the man himself on the screen. So hi, thank you for a good introduction, ma'am. And hello, guys. My name is Arpit, and I'm from Jodhpur, and I have my furniture business here in Jodhpur, and used to manufacture furniture and home decor here in Jodhpur, and we sell online and also do exports physically and online also. So yeah, it is my a short introduction about what I'm doing right now, and maybe we will discuss this in detail in this podcast with you guys. So I'm really excited, and thank you once again, ma'am, for having me and inviting me to your podcast. And good to see you after a long time. And that's my pleasure, of course. So thank you so much for appearing on the podcast and for finding out time. Okay, so let's move to the first question that we want to have from him. So, what was your initial experience as a from your college days, and what was your expectation and reality? So it was like back in 2018 when I have completed my schools and like came to know about SGT University College. And when I was in the school, I was searching for the college, and I have like two, three names. So I choose my university where I have completed my graduation. And in 2018, I left my hometown Jodhpur, and it was a new city, new people, new place. So initially, it was very difficult for me to adjust, but later on, things gradually works well. And my if I talk about my academic, my college was like I have a like huge expectations when I was in Jodhpur, because uh, a boy from Jodhpur, if he is going to study in Delhi or metro cities, so expectations थोड़ी सी high रहती है कि कुछ बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करेंगे या फिर कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा, कुछ बढ़िया डिग्रीज होगी. सो दैट्स हाउ थोड़ा सा मैं अपना माइंड मेकअप और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये थी. बट इन रियलिटी लाइक ऐसा नहीं हुआ, इससे काफी ज्यादा बेटर हुआ, बिकॉज माई कॉलेज वॉज लाइक वेरी ह्यूज, और फैकल्टी भी काफी अच्छी थी, मैनेजमेंट काफी ठीक था, और इट वाज लाइक वेरी लाइक फन, काफी मजे किए मैंने अपने थ्रू आउट माई ग्रेजुएशन डिग्री. सो आई मेड अ लॉट ऑफ पीपल. सो like I studied about the principle of management, how big companies work, how how big organizations work. So college, so yeah, my university teachers taught me the basic principles, how companies work. So yeah, that is how I learn about the companies. I learn about the management. I learn about the my course, and I made a lot of people, lot of friends there. So expectations was only about the academics, but in reality I have made good friends. I have learned a good things in the college. So yeah, it was a great uh, like good memories for my college. And I can speak a lot और ये podcast छोटा पड़ जाएगा. Like I have a lot of memories and a lot of like जो expectations और reality थी. So yeah, Okay, that's so it. that's very interesting to know and go back in the time and realize how things were, how nice things were in the past. So okay, so what was your career path so far? As in, you wanted from the academic path. So how did that academic path shape your career so far? You wanted to be in business since starting, or you wanted to be in corporate, and how did it shape your path? See, honestly, when I was in my first year, I always thought कि only we will do business, and मुझे जॉब नहीं करनी थी. आई वाज वेरी मच श्योर, वेरी मच क्लियर कि मुझे बिजनेस ही करना है. आई विल नॉट डू एनी जॉब, आई विल नॉट डू एनी इंटर्नशिप. बट वो थोड़ा मेरा एक पर्सपेक्टिव था. बट ग्रेजुअली व्हेन आई क्रॉस लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सो लेटर आई केम टू नो दैट कि job is also important. So and how this degree can help me in starting my business, how internships can help me in starting my business. So yeah, academics and this, like whatever I have studied so far, helped me a lot in like starting my own business. So
yeah, that's how my degree shapes my future. And I came to know about how big companies run. So it was really fascinating for me कि मुझे बड़ी companies के बारे में जानना है, like how बड़ी companies run, how big colleges run. So that is how I have learned so far from my degree, from my college, which is actually helped me a lot and helping me throughout abhi bhi in my life. Okay, so it's been how many years now so far that you have been business? You have been doing your business. Like it was around like 1.5 years, and like one and a half years. It's in back in 2024. I have started uh, of a factory with one of my friend. Me and my friend started this factory in with partnership with very small amount, and right now in 2025 I have launched my own furniture brand, which is the Home Style. You can search and you can follow in Instagram also. uh, Ma'am will mention the ID in the Yes, comment section, I or will. maybe I will mention the yeah, ID, of course. yeah. So Aarti ma'am will give a big shout out to my company, the Home Style. 100%, So 100% for sure. to whosoever the everybody guy who is listening, that I have my furniture business, so you can definitely reach me out. The Home Style is my brand name. So we make furnitures, we make home decors, and we used to, our vision, our dream is to, fulfill your furniture and home decor needs. So yeah, this is what I'm doing right now. Okay, so do you think that this any course in entrepreneurship or any kind of internship or training initially is important? या directly business में आप jump कर सकते हो? No, I will never suggest anybody, because as I told you before also, ma'am, कि when I was in the college, मेरा भी यही था कि I will not do any job. जॉब थोड़ी करूंगा मैं, या इंटर्नशिप थोड़ी करूंगा मैं तो बिजनेसमैन फैमिली से आता हूँ. बिजनेस करूंगा डायरेक्टली. आई विल कम टू माय होम टाउन एंड आई विल स्टार्ट दिस. तो एक एक सारी चीजें एक माइंड अपने माइंड मन में झूठे तसल्ली दिला से लेके मैं दिल्ली आया था. बट इन रियलिटी बहुत चीजें जब रियलिटी हिट करी, तो मैं कभी भी किसी को, आई विल नॉट सजेस्ट एनीबॉडी, गाइस, डू जॉब्स, बिकॉज आपको, यू हैव टू नो अबाउट हाउ बिग कंपनीज रन. वो आपको जॉब से ही पता चलेगा, वो आपको इंटर्नशिप से ही पता चलेगा, दैट हाउ बिग कंपनीज, हाउ एमएनसी वर्क्स, हाउ देयर मैनेजमेंट वर्क्स, हाउ देयर एचआर वर्क्स, हाउ देयर फाइनेंस, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर फाइनेंस, दे हाउ दे आर मैनेजिंग देयर फंड्स. तो ये सब सारी चीजें आपको जॉब करके या इंटर्नशिप करके ही पता चलेगी. यू विल नेवर, you cannot directly jump to the business, because आप अगर ऐसा करते हो तो you will, like, you are wasting your money, you are wasting your time, because एक ग्रेजुएशन करके या स्कूल करके डायरेक्टली बच्चा आके अगर बिजनेस करता है तो आई एम नॉट सेइंग कि लाइक दैट टुडे इन दिस जनरेशन, लाइक एआई, बहुत एआई के जमाने में, लाइक एवरीबडी स्टार्टिंग, आई एम सीइंग दैट 14 साल 15 साल के बच्चे आर डूइंग ग्रेट, डूइंग मेकिंग रोबोट्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड बहुत सारी ऐसे एप्स बना रहे हैं. तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उस तरीके से, बट somehow, like, job internship can help you. I'm not saying a lot, but somehow the jobs will help you, the internships will help you, that to initially boost your startup. So I will highly recommend कि अपने कॉलेज डेज में, अपने आफ्टर योर कॉलेज, एटलीस्ट डू 6 मंथ्स इंटर्नशिप. किसी भी फील्ड में अगर आपको जॉब, आपको बिजनेस करना है, लाइक फॉर मी, मेरे एग्जांपल, मेरे केस में, आई हैव ऑल्सो डन अ जॉब. लाइक मैंने 1.5 साल या 2 साल मैंने जॉब करी. पहले मैंने, आई हैव लर्न हाउ हाउ बिग फैक्ट्रीज रन. जैसे मुझे फैक्ट्री स्टार्ट स्टेब्लिश करनी थी अपनी, तो आई हैव वर्कड अंडर द वन ऑफ वन फैक्ट्री इन जोधपुर. एंड मैं बस उसी माइंडसेट के साथ देखता था कि कैसे ये फैक्ट्रीज को रन कर रहे हैं, कैसे अपनी फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को, अपने रॉ मटेरियल्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं. मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए, मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ अपने, जब मैं अपनी बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, व्हेन आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस, हाउ हाउ कैन आई डू दिस थिंग इन अ बेटर वे. सो ये सारी चीजें आपको जॉब करके ही मिलेगी, बिकॉज डायरेक्टली एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी है. कुछ सीखना, किसी से सीखना, किसी के फेलियर से सीखना बहुत जरूरी है. सो या, आई विल हाईली रिकमेंड
कि डू इंटर्नशिप्स गाइस, बिकॉज बहुत सारी इंटर्नशिप्स, बहुत सारी कंपनीज स्टार्टअप्स है जो दे आर इनिशियली बूस्टिंग यू, आपको सिखाएंगी, आपको काफी चीजें आपको हेल्प करेगी। सो या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज और फीडबैक दिया आपने एक्चुअली, जो कि समहाउ आई थिंक, बिकॉज आई एम आल्सो टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड आई फील एक स्टार्टिंग में बिजनेस कर लेना और उसको उस फिर वो चैलेंजेस बाद में भुगत के लर्न करना से बेटर ये है कि आप पहले उसको पढ़ लो, समझ लो, देख लो किसी एग्जैक्टली के थ्रू और फिर करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट्स अ वेरी गुड फीडबैक दैट यू गिव. एग्जैक्टली। And okay, so because you have done both corporate and business, so I would ask you which is a better career path. So what did you prefer? Corporate better था कि career ये business better है? इट इज वेरी गुड क्वेश्चन मैम। लाइक अगर आप देखोगे तो लाइक बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टक होते हैं, एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं वो, बिकॉज आफ्टर आफ्टर देयर कॉलेज, आफ्टर देयर डिग्री, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अपना बताता हूँ, बिकॉज अगेन दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड आप मतलब हर एक का अलग माइंडसेट, पर्सनालिटी होता है। सी इफ आपको अगर आप लाइक मैं अपनी बात करूंगा, लाइक मेरे केस में मैं शुरू से, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मैं शुरू से एक बिजनेसमैन फैमिली से आता हूँ एंड आई वाज वेरी श्योर, वेरी वेरी क्लियर कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो जॉब की तरफ मेरे को इतना था नहीं। हाँ ठीक है, जॉब करी, वहां से कुछ सीखा मैंने, वो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस में। बट जॉब में ऐसा है कि जॉब में अपनी सिक्योरिटी है, अपनी स्टेबिलिटी है। ठीक है, अगर किसी को बिजनेस में इतना नहीं इंटरेस्ट है, मेरे भी काफी फ्रेंड्स हैं जो दे आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी पे दे आर डूइंग जॉब्स इन बैंगलोर, इन पुणे, एंड अच्छे पैकेजेस पे दे आर डूइंग ग्रेट, अप्रेजल्स भी लगा रहे हैं, सो उनकी ग्रोथ भी हो रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा जॉब वाले ग्रोथ नहीं कर पाते, पैसा नहीं कमा पाते, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आपकी आप क्या चाहते हैं, आप किस में खुश हैं, आपको क्या चाहिए एग्जैक्ट लाइफ में। आपको अगर फ्रीडम चाहिए, आपको आपको तो आप बिजनेस करें। आपको अगर कुछ चैलेंजिंग चीजें करना पसंद है, या आपको चीजों को मैनेज करना, चीजों को चलाना, लोगों से काम करवाना पसंद है, तो गो फॉर बिजनेस गाइज। और आजकल तो बिजनेस करना बहुत इजी हो चुका है एआई के जमाने में। लाइक देयर आर लाइक लॉट ऑफ सोर्सेज, लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन इंटरनेट। एआई के जमाने चैट जीपीटी कैन हेल्प यू अ लॉट इन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, एंड देयर आर लाइक बहुत सारे चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर है। एंड जॉब्स में अपनी स्टेबिलिटी अलग है। ठीक है, किसी को शांत लाइफ पसंद है, किसी को बैलेंस लाइफ पसंद है, तो दे कैन डू जॉब। और मेरे जैसे लोग जिनको जिनको चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है, उन्हें सॉल्व करना अच्छा लगता है, कुछ टास्क देने में, अगर उन्हें टास्क कंप्लीट करने में मजा आता है, तो दे डू बिजनेस। सो आई विल नॉट से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। सबके अपने अपने चॉइसेस है, सबकी अपनी अपनी, या वही वाली बात है। हाँ, दैट्स अ वेरी फेमस कोट एंड टैगलाइन कि अगर आपको ऑर्डर्स सुनने हैं तो आप कॉर्पोरेट में जाइए, आपको ऑर्डर्स देने हैं तो आप बिजनेस में जाइए। करेक्ट करेक्ट। ट्रू दैट्स ट्रू ट्रू। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि आपको क्या अच्छा लगता है लाइफ टाइम दैट एंड वन। व्हाट यू वांट टू डू. It's very true. It's very good to know from you एग्जैक्टली एग्जैक्टली। because I feel the idea behind the podcast is to make the real experiences reach the audience, जो कि हमें मिलते नहीं हैं, and then even एग्जैक्टली बिकॉज to give exposure बिकॉज to. या बिकॉज ऑनेस्टली मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको सच में बिल्कुल जॉब नहीं करनी थी। आई वाज वेरी अगेंस्ट के जॉब का कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता यार। कैसे कोई इंसान किसी की 9 to 5 जॉब करके कैसे किसी की इंसान किसी बॉस की सुन रहा है। बट थोड़ा बहुत मुझे लेटर ऑन ग्रेजुअली समझ में आया कि नहीं, जॉब करो जस्ट टू गिव आप अपने आप को नॉलेज कि एक बड़ी कंपनी रन कैसे करती है, एक बड़ी कंपनी काम कैसे करती है। जॉब करो, बट उस जॉब में उतना ही सीखो। बिकॉज आज के जमाने में अगर मैं ये मानता हूँ कि इफ अ पर्सन, इफ ही और शी इज डूइंग ओनली 9 to 5 जॉब इस एआई के जमाने में, अगर आप, क्योंकि बिकॉज आप देखोगे रिसोर्सेज इतने इतने अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि, और देन ऑल्सो पीपल अगर जॉब को चूज करते हैं, तो इट्स अगेन इट्स देयर चॉइस। बट आज के जमाने में बिजनेस करना, इन शॉर्ट में बोलूंगा तो ज्यादा इजी है, ज्यादा बेटर हो गया है, ज्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है। बस आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है और उसको उन्हें ग्रैब करना है। बहुत सारा पैसा आपके लिए वेट कर रहा है अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आप ढूंढ के प्रोवाइडेड आप यूज। उसको ढंग से रन कर लो.
और वो अच्छा हो जाए, सो दैट इज़ ऑल्सो एवरीथिंग इज़ चैलेंजिंग। आई डोंट Exactly. थिंक इट्स ईज़ी, बट या, दैट्स वेरी ट्रू। Yeah, it comes with a lot of challenges, but yeah, challenges का नाम ही जिंदगी है। बिना because बिना challenges के आप जॉब में भी इंसानों के भी लोगों के पास challenges आते हैं मैम, बट वो है कि आपका खुद का चैलेंज होता है। आपको पता है कि इसको आप किस तरीके से मैनेज करके इसको क्लियर करोगे तो ये अपना ही फायदा है। जॉब में अगर आप किसी वो चीज को अपना दिमाग लगा के अपने मेंटल हेल्थ को खराब करके अगर आप कोई सोल्यूशन पे आ रहे हो तो वो किसी और का फायदा है। तो ये मेरी सोच है। दैट्स माय नहीं, चॉइस, नहीं, दैट्स ठीक है, माय दैट्स ये बहुत 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 जेन्युइन सोच है और बहुत ही सही डायरेक्शन वाली सोच है। दैट्स द रियल सिनेरियो एक्चुअली। सो ओके, जहाँ चैलेंजेस की बात कर रहे हैं हम, सो लेट्स जस्ट गेट टू नो मोर अबाउट सो व्हाट आर दोज बेसिक सरप्राइजेस और challenges which came to your path when you initially entered into business and then it was a surprise to you? या सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आई होप मैं आपकी ऑडियंस को, जो आपके लिसनर्स है, उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहा। गाइस, अगेन इट्स योर चॉइस। आप जॉब भी कर सकते हैं। जॉब, देयर आर लॉट ऑफ गुड जॉब्स आउट ऑफ देयर। आप जाओगे तो अच्छी जॉब्स भी हैं। लाइक अगर सभी जॉब करेंगे तो, लाइक अगर सब बिजनेस करेंगे तो जॉब कौन करेगा आपके अंडर काम करने। सो आई एम नॉट सेइंग कि जॉब खराब है। जॉब अच्छी चीज है। मेरे को ऐसा लगता है कि जॉब मैं शायद बना नहीं हूँ जॉब करने के लिए। मेरा शुरू से पैशन बिजनेस में था, तो मैं बिजनेस में आया। जॉब मैंने सिर्फ कुछ चीजें सीखने के लिए करी। तो या सो अगेन आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि मैम, कैन यू प्लीज आस्क मी क्वेश्चन अगेन? क्या क्वेश्चन था? आई एम सॉरी। द क्वेश्चन इज़ कि आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, या व्हाट आर दोज़ सरप्राइजेस व्हिच केम टू योर पाथ द मोमेंट यू एंटर्ड द इंडस्ट्री एंड यू रियलाइज्ड ओके ये बिज़नेस है, या मैंने गलत डिसीजन ले लिया। कुछ चैलेंज कुछ तुम्हारे लिए रियलाइज़ हुआ 2 मिनट के लिए कि मैंने क्या कर लिया ये अपने साथ? सो या। 2 मिनट मैम। एक्चुअली बिजनेसमैन की लाइफ में चैलेंजेस हर दिन होते हैं। लाइक देयर आर, लाइक एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज फॉर बिजनेसमैन। ये एक प्लस पॉइंट भी है, ये एक माइनस पॉइंट भी है। फॉर दोज जिसको जो सोचना है। बट मेरे लिए, लाइक मेरी लाइफ में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी थी एंड आई वाज डूइंग जॉब इन वन ऑफ द एमएनसी कंपनी। सो ऐसा था कि व्हेन आई वाज मेरा ऐसा था कि अब मैं उस जॉब को क्विट कर रहा हूँ एंड आई एम स्टार्टिंग माय बिजनेस। मैं अपने बिजनेस पे जंप कर रहा था एंड I have made a plan, पूरा blueprint ready था, everything was sorted, everything was planned, everything was, सब notes में था। बट प्रॉब्लम था फाइनेंस, हाउ टू फंड माय ओन बिजनेस। सो ऐसा था कि ठीक है, पापा से जाऊंगा, पापा से पैसे मांगूंगा एंड बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। बट अगेन, इतनी इजी चीजें होती तो फिर सब बिजनेस कर रहे होते। सो मेरा पहला चैलेंज उस वक्त मैंने फेस किया कि ओ, बिकॉज पापा डिनाइड कि आई विल नॉट गिव यू मनी। You have to, it's your life, it's your business. Do by yourself, अपने आप से करो। I'm not saying कि and I'm thanks to my dad, मैं आज उन्हें थैंक यू बोलता हूँ कि and actually उन्होंने मुझे ये चीज उस वक्त बोली। या क्योंकि अगर वो मुझे इजीली पैसा दे देते हैं, मैं इजीली बिजनेस कर लेता, तो मेरी लाइफ में शायद ये चैलेंज आ ही नहीं पाता, मैं सीख नहीं पाता, मुझे पता ही नहीं चलता हाउ पीपल हाउ वो लोग कैसे डील करते होंगे जिनके पास फाइनेंस, जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास फंड्स नहीं होते, है ना। सो उन्हें कौन इन्वेस्ट करता होगा। सो आई केम टू नो अबाउट सेल्फ इन्वेस्टिंग। सो इट वाज कंप्लीटली अ बूटस्ट्रैप फॉर मी। मैंने खुद ने अपने बिजनेस पर पैसा अरेंज किया। somehow I managed some funds, little funds, and me and my friends just started a small unit. From there we shifted to big unit, and we used to sell small chairs, and little profit we earned from this, and we invested all those money into our big, लिटिल बिग, थोड़ी सी बड़ी फैक्ट्री पे हम लोग शिफ्ट हुए। सो जो भी पैसा कमाया वो सिर्फ बिजनेस में डाला, कुछ भी खुद पे खर्च नहीं किया। तो ये भी अगेन एक चैलेंज होता है, बिकॉज फॉर अ पर्सन, फॉर एक इंसान के लिए, अगर जो बिजनेस में आता है और बिजनेस में पैसा कमाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये पैसा तो चलो अपना हो गया, मौज करेंगे, गाड़ी, कपड़े, घूमना फिरना। बट अगेन ये हमारे लिए चैलेंज था। हमने वही पैसा री इन्वेस्ट किया हमारे बिजनेस में, एंड दैट्स हाउ वी started the home style, right? And later हमने वही चीजों को reinvest किया। And after starting the home style also, I have started a many challenges, because so challenges के लिए, like I have a whole list, ये podcast कम पड़ जाएगा। So पॉइंट पे आते हैं कि चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आगे भी आते रहेंगे। मेरे मेरे जिंदगी में अभी भी आते हैं। मेरे फादर की लाइफ में ही इज इनटू बिजनेस फ्रॉम लास्ट 50 years।
45 ईयर्स, 40 टू 45 ईयर्स वो बिजनेस में, वो छोटे से जब से वो बिजनेस कर रहे हैं। तो आज भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ गाइस। आप कुछ भी बिजनेस करोगे या जॉब भी करते हो तो चैलेंजेस वहां पे भी आएंगे, चैलेंजेस आपको बिजनेस में भी आएंगे। इट्स जस्ट कि आप उस चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करते हो, कैसे अपने दिमाग को यूज करके उस चैलेंज का या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, वो एक आपको बेटर इंसान, वो एक आपको बेटर एंटरप्रेन्योर की तरफ लेके जाएगा आपको। तो दैट इज हाउ यू हैव टू चैलेंज, यू हैव टू डील विद द चैलेंजेस। मेंटल प्रेशर आएगा, बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ठीक है जॉब ही ठीक थी, जॉब ही ठीक है यार, स्टेबिलिटी है, अच्छी इनकम आ जाए, क्यों इतना दिमाग लगाना। बट आप बन जाओगे गाइस, एक ट्रैप में फंसते रहोगे और दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिजनेस में फ्रीडम मिलेगी, चैलेंज आएगा, बट इवेंचुअली धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती है। एक इंसान अगर एक किसी रास्ते पे जाता है तो उसको अपनी कड़ियां जुटती रहती है, उसको रास्ते मिलते रहते हैं। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। That's very, very correct and true, I will say, and I can see the transformation that has been that's happened to you since the college time and now. Though you were a very, very sincere student, I know, but I'm sure क्योंकि ये बात लोगों तक पहुंचाना और एक ऑडियंस को कन्वे करना, लोगों को चांस नहीं मिल पाता समझने के लिए, पूछने के लिए कि बिजनेस कैसे करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So I feel this will be a very good source of information for people to understand how or maybe take a decision. So सकता है आपके पॉडकास्ट से मोटिवेट होके कोई कोई एक अच्छा डिसीजन लाइफ में ले ले. So it's a very I'm glad I had you today. हाँ Uh, जी, I'm glad अगर एग्जैक्टली I'm glad अगर मेरी कुछ भी जर्नी से अगर आपकी आपके फॉलोवर्स, आपके ऑडियंस, अगर आप कुछ भी थोड़ा सा 1% भी कुछ लर्न कर पाए, सीख पाए, है ना। आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर ऐसा कुछ नहीं है, नॉट अ इन्फ्लुएंसर, बट ठीक है, कुछ लाइफ में किया, कुछ चैलेंजेस ये तो मैं भी अपनी लाइफ में लोगों को देख के ही सीखा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को देख के सीखा हूँ, नॉर्मल से लोगों को देख के सीखा हूँ। मैंने भी काफी अपने फादर को देख के बहुत सीखा हूँ मैं, कैसे उन्होंने ये चीजें। तो इन लाइक यू विल लर्न किसी को सीख के, किसी को देख के। आई एम सॉरी, आप किताबें पढ़ के कुछ चीजें नहीं सीख सकते। आई एम सॉरी, अगर आप सोचते हो कि मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं किताबें पढ़ के आई विल स्टार्ट माय बिजनेस, आई एम सॉरी गाइस, यू कैन नॉट। आप बिजनेस सिर्फ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, आपके नेटवर्क से और वैसे ही चला पाओगे। बिकॉज पैसा विल कभी एक बड़ी प्रॉब्लम को नहीं, पैसा आप कहीं से मैनेज कर लोगे। मैंने मैनेज कर लिया, मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने मैनेज कर लिया तो कोई भी मैनेज कर सकता है। मेन चीज इज आपका नेटवर्क कितना है, आपने कितने नेटवर्क्स बनाए, उन नेटवर्क से आप किस तरीके से बिजनेस लेके आ सकते हो, कितने हेल्प कर सकते हो अपने बिजनेस को, कितना बूटस्ट्रैप कर सकते हो। सो कॉलेज में यही है यार, मस्ती करो, नेटवर्क्स बनाओ, दोस्त बनाओ, और अगेन वही अपनी जो जिस कोर्स के लिए आप गए हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे उनका बेसिक प्रिंसिपल समझ लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 80% 90% लेके आओ। आई एम ऑल्सो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था। आई एम नॉट कि मैं कोई टॉपर था, बट अगेन सी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से रन हो रहा है। सो या okay, so I agree with you. So कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपने स्कूल से सीखी या कॉलेज से सीखी और आपको थोड़ा हेल्प कर रही हैं बिजनेस में? Any few skills that you could tell us? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो एक स्किल थी वो मेरे अंदर बचपन से ही थी। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने कॉलेज से सीखी, वो थी नेटवर्किंग। मुझे दोस्त बनाना काफी पसंद है। मैं नए लोगों से बहुत जल्दी इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे फेमिलियर हो जाता हूँ, एंड उनसे उनसे दोस्ती कर देता हूँ या फिर उनसे बात कर लेता हूँ। somehow I we will we connect and you know so ये एक स्किल मैं बोलूंगा हर एक इंसान को आनी चाहिए कि नेटवर्किंग। बिकॉज नेटवर्किंग गाइज, नेटवर्किंग कैन हेल्प यू अ लॉट। लाइक इफ अगर आज मैं आप कॉलेज जाते हो, आप 10 लोगों से मिलते हो, 10 लोगों में से आप अगर आप 5 लोग से बात करते हो, यू विल केम टू नो अबाउट कि 5 लोग क्या सोचते हैं, 5 लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है, 5 लोगों का बिजनेस क्या है, 5 लोगों का पैशन क्या है, क्या वो लोग करते हैं। तो आपने एक ही टाइम पे 5 लोगों की मेंटालिटी जानी, आपने एक ही टाइम पे 5 लोगों का जो पर्पस है लाइफ का वो जाना, एंड उससे आप अपने बारे में भी काफी चैनलाइज कर सकते हो। तो ये एक स्किल है जो मुझे लगता है सबको आनी चाहिए। मैं देखता हूँ लाइफ में, जैसे अभी मैं देखता हूँ काफी बच्चे जो होते हैं वो शाय होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं यार, जो हमसे चला के बात करेगा, वी विल टॉक टू देम, वी विल नॉट गो टू एनीबॉडी चला के हाय। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनिशिएट करना चाहिए, और इनिशिएट करोगे तो आपकी यू विल हैव अ गुड नेटवर्क, यू विल हैव अ ग्रेट टीम,
कौन कहाँ से कहीं से भी कुछ भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो एक ये स्किल मेरे अंदर थी जो मैंने शायद कॉलेज में सीखी या कॉलेज में ऑटोमेटिक मेरे लाइफ में आई और मुझे आज तक हेल्प हो रही है। एंड अगेन that's very true. कम्युनिकेशन नेटवर्किंग तो स्किल्स खैर कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन बिजनेस के या अलावा भी नेटवर्किंग बाकी जगह भी ज़रूरी है, कॉर्पोरेट में बहुत ज़रूरी है, सो आई एग्री विद दैट। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो बिकॉज इवेंचुअली आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स विल डेवलप ऑटोमेटिकली बिकॉज आपके अगर नेटवर्क्स होंगे आपके दोस्त बहुत ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आप उनसे बात करेंगे एंड बात करोगे तो यू नो आपकी कम्युनिकेशन you स्किल्स learn अगेन something, right? डू टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज लाइक बहुत सारे कॉलेजेस में जो फेस्ट होते हैं फंक्शंस होते हैं तो बहुत लोग नहीं जा पाते तो बहुत लोग इनिशिएट नहीं कर पाते तो मैं यही बोलूंगा मैं कॉलेज में पढ़ाई में सोचता था बट मैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में था अपने आप को हमेशा पुश करता था अरे ये करेंगे आज आई विल डू एंकरिंग आई विल डू पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे वी यूज्ड टू you know we have organized that teachers day celebration आपको पता होगा मैम एंड so we have planned something so ये सारी चीजें हैं कॉलेज में बहुत सीखने को मिला मुझे ये स्किल्स हैं तो हर किसी को आनी चाहिए दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। बाकी चीज़ें तो आप ग्रेजुअली चैलेंज से सीख सकते हो, बिज़नेस करने के बाद, एग्जैक्टली बट ये कुछ बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, दैट्स वेरी ट्रू। Okay, so, ट्रू Mr. Arpit, I just want to remind you that this meeting would end. So in case it ends, we can join another meeting because I don't want to miss the नो वरीज interesting conversation that I'm having with you. I'm glad श्योर श्योर even the people would like it. So in case it closes, I'm sure it will be closing in the next 4 minutes. So you can be joining in ओके another meeting, right? Or श्योर श्योर shall श्योर we नो move वरीज now and join the next meeting? Is that okay with you? या ओके इट्स We ओके can right now join a fresh meeting, so at least we can continue the last few ओके questions with तो you. I you are sending me the link or No, the I same have link. to The same link if you same link press. okay Yeah, so we'll join. done done Well, done I'll see you. I'll see okay you in the news link. Okay. okay